السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، دامغان شہر میں غریب اور شریف آدمی رہتا تھا جس کا نام شیخ برہان تھا۔ اس کے یہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے لاکھ جتن کیے، قسمت میں ایک لڑکے کے سوا اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ماں باپ بے حد زیادہ اسے چاہتے تھے۔ بڑے لاڈ پیار اور چاؤ چوچلے سے اس کی پرورش اور تعلیم ہوتی رہی اور اس کا نام شاطر حمید رکھا گیا۔ ایک دن شیخ برہان کو ایسا اندازہ ہوا کہ اب وہ زیادہ دن نہیں جیے گا۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیوی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جلد مرنے والا ہوں۔ اپنے دوست شیخ حسن کو تمہارا اور شاطر کا سرپرست اور نگراں بنائے دیتا ہوں۔ وہ بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں، تمہاری اور تمہارے بچے کی دیکھ بھال کریں گے اور ہر طرح کا خیال رکھیں گے۔ شیخ حسن درزی کا کام کرتے اور نیلی دروازے میں رہتا تھا، وہیں ان کی دکان تھی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ان کو بلا لینا اور ان سے کہنا، وہ بندوبست کر دیں گے۔ اور یہ لو 3 چیزیں، ایک تو خاص قسم کی ٹوپی ہے، ایک تھیلی اور ایک ڈنڈا۔ ان تینوں چیزوں کو سنبھال کر حفاظت سے رکھنا، اور جب میں مر جاؤں تو جب ضرورت پیش آنے پر یہ چیزیں شاطر کو دے دینا، مگر سب ایک دم نہ دینا، ایک ایک کر کے دی جائیں، اور شاطر کو خوب تاکید کرنا کہ ان کو سنبھال کر رکھے۔ سب سے پہلے اسے تھیلی دینا۔ اس تھیلی کی اگر وہ حفاظت کرے اور ضائع نہ ہونے دے تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ اسے کھو دے تو پھر اسے یہ ٹوپی دے دینا۔ اس کو بھی وہ نہ سنبھال کر رکھ سکے تو ڈنڈا دینا اور کہنا کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے، تو پھر اللہ اس کو کسی مصیبت سے نہ بچائے گا اور وہ بڑی آفتوں میں پھنس جائے گا جن سے نکلنا اس کا دشوار ہوگا۔ عورت اپنے میاں کی باتیں سن کر بہت دیر تک روتی رہی، پھر وہ چیزیں لے کر رکھ لیں۔ اس کے بعد شیخ برہان نے اپنے بیٹے شاطر کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹے، اپنے چچا شیخ حسن کے پاس چلے جاؤ جو تیلی دروازے میں رہتے ہیں۔ ان سے کہنا، میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ابھی گھر بلایا ہے، ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر شاطر اسی وقت شیخ حسن درزی کو بلانے کے لیے چل دیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ شیخ حسن بولا، سر آنکھوں سے حاضر ہوں اور ابھی چلتا ہوں۔ پھر وہ دکان سے اٹھا، کچھ سامان لیا، پھیلا ہوا اسباب سمیٹ کر رکھا اور شاطر کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے شاطر کے گھر پہنچ کر شیخ برہان کو سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ شیخ برہان نے کہا، میں بہت جلد مرنے والا ہوں، یہ 100 اشرفیاں لیجئے، اپنے پاس رکھیے، صبح کو یہاں آ جائیے، میرے لیے کفن دفن کا سامان تیار کر کے اچھی طرح مجھے قبر تک پہنچا دیجئے اور ثواب پہنچانے کے لیے قرآن شریف کا ختم کرا دیجئے۔ میں آپ کو اپنی بیوی اور بچے کا سرپرست بناتا ہوں۔ شیخ حسن بولا، میں ہر خدمت کے لیے سر آنکھوں سے حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ شیخ برہان سو گیا۔ جب صبح ہوئی، گھر والوں نے دیکھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ شیخ حسن کفن دفن کا ضروری سامان لے کر صبح ہوتے ہی پہنچ گیا اور اسے آخری منزل پر پہنچا دیا۔ 3 دن سوگ منانے کے بعد شیخ برہان کی بیوی نے کہا، چچا جان، اب ہمارے والی وارث اور بزرگ جو کچھ ہیں وہ آپ ہی ہیں، شاطر کو اپنے پاس رکھیے، اسے درزی کا کام سکھائیے۔ شیخ حسن بولے، سر آنکھوں سے حاضر ہوں، کل صبح خدا نے چاہا تو اس کو اپنی دکان پر لے جاؤں گا۔ شیخ برہان کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ دوسرے دن جیسے ہی دن نکلا، شاطر کی ماں اٹھی۔ اس نے شاطر کو اٹھایا اور کہا، بیٹے، جلدی ناشتہ کر کے چچا شیخ حسن کے پاس چلے جاؤ اور درزی کا کام سیکھنے کے لیے روزانہ ان کی دکان پر جایا کرو۔ شاطر بولا، اماں جان، بہت اچھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس کی ماں بولی، لو بیٹا، یہ تھیلی، یہ اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے تمہارے مرحوم باپ دے گئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ شاطر کو دے دینا۔ شاطر نے وہ تھیلی لے لی اور اپنے جی میں کہنے لگا، خدا جانے یہ تھیلی کس کام آئے گی یا بھی نہیں، بہرحال اس کو ساتھ لے چلیں، کچھ پیسے ملیں گے تو اسی میں رکھ لیا کریں گے۔ یہ سوچ کر تھیلی لے کر شیخ حسن کی دکان پر وہ چلا گیا۔ دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ شاطر نے ان کو سلام کیا، دکان پر چڑھا اور سارا دن وہاں درزی کا کام سیکھتا رہا۔ شام کو شیخ حسن اٹھا۔ اس نے 2 آنے دے کر کہا، شاطر، تم اپنے گھر جا رہے ہو،
ये दुआएं ले लो, इन्हें रास्ते में खो न देना। शातिर बोला बहुत अच्छा, और 2 कन्या ले लीं और उसे अपनी थैली में डालकर रवाना हो गया जो उसका बाप मरते वक्त उसे दे गया था। अब वो सीधा अपने घर पहुंचा। उसकी माँ बोली, बेटा क्या आज दिन भर तुम दुकान पर ही काम करते रहे? शातिर बोला, जी हाँ अम्मी जान, मैं बराबर दुकान पर काम करता रहा और चलते वक्त चाचा ने 2 कन्या मुझे दी और बोला ये पैसे अपनी थैली में रखो, देखो कहीं रास्ते में खो ना देना। फिर खुद ही इसने थैली माँ की गोद में उंडील कर खाली कर दी। उसकी माँ ने देखा तो 2 कन्या नहीं बल्कि 2 अशरफियाँ हैं। वो बोली, ये तुमको किसने दी? शातिर की माँ ने 2 अशरफियाँ अपनी मुट्ठी में दबाई और खुद शेख हसन के पास पहुंची और उनसे बोली, अल्लाह आपको खुश और अच्छा रखे, भला आपने बच्चे को 2 दिनार अशरफियाँ क्यों दी? अभी बच्चा इस काबिल कहाँ है? शेख हसन ये सुनकर हैरत में पड़ गया और फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ से दोनों अशरफियाँ ले लीं, उनको गौर से देखा और शातिर की माँ से बोला, हाँ मैंने भूले से ये अशरफियाँ दे दी हैं, इसमें शातिर की कोई गलती नहीं। और वो अशरफियाँ अपने पास रख लीं। शातिर की माँ घर वापस आ गई। दूसरे दिन जब शातिर शेख हसन की दुकान पर पहुंचा तो शेख हसन ने उससे कहा, मैंने तुमको दुकान से जाते वक्त 2 कन्या दी थी, वो तुमने क्या की, किसको दी? शातिर बोला, वो मैंने थैली में रख ली थी और जाकर अपनी माँ को दे दी थी, मगर उन्हें 2 अशरफियाँ मिली। शेख हसन बोला, जरा मुझे अपनी थैली तो दिखाओ। शातिर ने थैली उसके हाथ में दे दी। शेख हसन इससे थैली लेकर दुकान में उतरा। थोड़ी दूर जाकर अपनी जेब से 2 कन्या निकाली और इस थैली में डाल दी। फिर उनको निकाला तो 2 अशरफियाँ निकली। फिर और 2 कन्या डाली और निकाली तो 2 अशरफियाँ निकली। शेख हसन अपनी दुकान पर वापस आया और थैली में 100 कन्या डालता और 100 अशरफियाँ निकालता रहा, यहाँ तक कि दुकान पर अशरफियों का ढेर लग गया। फिर इसने शेख शातिर से कहा, देखो ये दौलत तुम्हारी ही थैली से मिली है, इसमें से आधी तुम ले लो और आधी मुझे दे दो। शातिर उठा, इसने आधा रुपया शेख हसन को दिया, आधा खुद लिया और अपनी थैली लेकर घर चल दिया। अपनी माँ के पास पहुंचा और तमाम अशरफियाँ उसके सामने जाकर उंडील दी और उससे कहा, ये सब इसी थैली में से निकली हैं, और सारा किस्सा कह सुनाया। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा मेरे सामने इस थैली में 2 कन्या डालो, मैं भी देखूं इसमें से क्या निकलता है। शातिर ने कहा, ठीक है, और 2 कन्या लेकर थैली में डाली। फिर इनको निकाला तो 2 अशरफियाँ निकली। शातिर की माँ ये देखकर बहुत खुश हो गई और उससे कहा, अच्छा बेटा अब इसको फिर से भर दो। शातिर बोला, बहुत अच्छा अम्मी जान। फिर वो घर से निकलकर बाजार गया। इसने अपने लिए एक शानदार घर और अपनी माँ के लिए बहुत सा सोने का जेवर खरीदा और तमाम सामान ले लिया जिसकी उसे जरूरत थी। अब ये माँ बेटे किसी के मोहताज न थे और शातिर को दर्जी का काम सीखने के लिए शेख के पास जाने की जरूरत भी न थी। इसने ये काम छोड़ दिया और बड़े बड़े ताजरों के लड़कों के साथ उठने बैठने लगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया था। इसके दोस्त अहबाब पैदा हो गए थे। अब वो जहाँ भी जाता तमाम लोग उसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़े होते। इस वक्त उससे बड़ा दौलतमंद इस शहर में कोई न था। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक दिन शातिर ताजरों के नौजवान और अपने हमउम्र लड़कों में बैठा हुआ बातें कर रहा था। ये लोग आपस में सैर व तफरीह की बातें कर रहे थे और शातिर गौर से सुन रहा था। उनमें से एक नौजवान ने दूसरे से कहा, मैं मुल्क शाम का सफ़र करने वाला हूँ। दूसरा बोला, मैं मुल्क मगरिब की सैर को जाने वाला हूँ। तीसरा बोला, मैं हिंदुस्तान का सफ़र करने वाला हूँ। चौथा बोला, मेरा इरादा तो इस्तांबुल जाने का है। गर्ज ये हर एक नौजवान ने इसी किस्म का इरादा जाहिर किया। ये बातें शातिर ने सुनी तो उसके दिल में भी सफ़र का शौक पैदा हुआ। ये अपने घर पहुंचा तो इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मैं हिंदुस्तान का सफ़र करना चाहता हूँ, मेरे कई दोस्त भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। उसकी माँ घबरा कर खड़ी हो गई और शातिर से कहने लगी, बेटे हरगिज नहीं, हरगिज सफ़र का इरादा ना करना। सफ़र बड़ा कमबख्त और बड़ी कठिन मुसीबत है। शातिर बोला, नहीं अम्मी, मैं ज़रूर सफ़र करूँगा। शातिर की माँ बोली, बेटे तुम मेरी बात नहीं मानते तो अच्छा जाओ, अपने चचा शेख हसन दर्जी से मशवरा कर लो और उनको यहाँ बुलाओ। उन्हें तुम्हारे मरहूम बाप ने तुम्हारा सरपरस्त बनाया है।
اگر وہ تمہارا ارادہ پسند کریں اور سفر کی اجازت دے دیں یا جو رائے دیں اس پر عمل کرنا۔ شاطر بہت اچھا کہہ کر سیدھا شیخ حسن کے پاس پہنچا اور اسے اپنے گھر بلا لایا۔ شیخ حسن شاطر کی ماں کے پاس پہنچے تو وہ ادب سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، دیکھیے چچا جان، شاطر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ حسن بولے، کیوں بھائی، کس لیے؟ شاطر بولا، میں پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ شیخ حسن بولا، میرے بیٹے، سفر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو محتاج اور غریب ہوتے ہیں۔ تم ماشاءاللہ دولت مند ہو اور ہمارے خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تم کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غرض اس نے بہت زور دیا اور سفر سے منع کیا، مگر شاطر نہ مانا۔ وہ یہی کہتا رہا، میں سفر ضرور کروں گا۔ شیخ حسن بولا، خیر تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تمہیں زیادہ مجبور کرنا نہیں چاہتا، اپنے سفر کا مقصد بتاؤ۔ شاطر بولا، تجارت۔ اب شاطر اور شیخ حسن اٹھے اور گھر سے نکل کر بازار پہنچے۔ حسن نے اس کے لیے تجارتی سامان خریدا اور ایک جہاز کرائے پر لیا۔ شاطر اپنی ماں سے اجازت اور ضروری سامان سفر لے کر رخصت ہوا اور سمندر کے ساحل پر آ کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہو گیا۔ یہ جہاز رستے میں جس شہر اور مقام پر پہنچتا، شاطر وہاں اتر کر کچھ سامان خریدتا اور کچھ بیچتا۔ اسی طرح چلتے چلتے ہندوستان کے ساحل پر پہنچ گیا اور جہاز نے سمندر کے کنارے لنگر ڈالا۔ شاطر اتر کر شہر صورت میں سیر و تفریح کے لیے چل دیا۔ پھر اس نے اپنے رہنے کے لیے شہر میں ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور وہاں ایک شاندار تجارتی کوٹھی بنوائی۔ اب وہ جہاز سے اپنا سارا سامان اتار کر کوٹھی میں لے آیا اور چیزیں خریدنے اور بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ جو چیزیں شہر میں 10 روپے میں ملتی تھی وہ شاطر 5 روپے میں دیتا تھا۔ شہر والوں میں سے ایک شخص کو اس نے نوکر رکھ لیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کا دل لگا رہے۔ شہر والوں سے جان پہچان میں آسانی اور تجارتی کام میں سہولت ہو۔ اس شہر کا راجا، اس کا بیٹا اور وزیر بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے ناموں سے تجارتی منڈیاں کھول رکھی تھیں۔ شاطر نے ہر چیز کے دام گرا دیے، 10 روپے کی چیز 5 روپے میں۔ شہر کے اکثر تاجروں کا کاروبار خراب اور لین دین بند ہو گیا، نہ کچھ خرید سکتے تھے نہ کچھ بیچ سکتے تھے۔ شہر کے تاجروں نے ایک دوسرے سے شکایت کی، آپس میں مشورے کیے، آخر سب مل گئے اور سب کی اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ہم چلیں اور راجا کو اپنا دکھ درد سنائیں۔ اس کام کے لیے تاجروں میں سے چند ہوشیار لوگ چنے گئے۔ یہ راجا کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے اپنی شکایت پیش کی۔ راجا نے اپنے وزیر سے کہا، شہر کے کاروباری حالت کی جانچ کی جائے اور اس لڑکے کے خلاف مناسب کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر نے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ عرض کی، میری ناچیز رائے یہ ہے کہ راجا صاحب اور میں بھیس بدل کر بازار میں پہنچیں، اپنی آنکھوں سے لین دین کا حال دیکھیں اور پتہ چلائیں کہ اصل بات کیا ہے۔ راجا نے اس رائے کو پسند کیا اور بولا، بہت اچھی بات ہے۔ دربار برخاست ہوا۔ راجا اور وزیر نے فقیروں کا لباس بدلا اور چپکے سے محل سے اتر کر روانہ ہوئے۔ جب شاطر کی کوٹھی پر سے گزرے تو اس شخص نے ان کو پہچان لیا جس کو شاطر نے نوکر رکھ لیا تھا اور اسی وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ راجا اور وزیر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور شاطر سے بولا، آپ جانتے ہیں یہ دونوں کون ہیں؟ شاطر بولا، نہیں۔ ملازم بولا، یہ راجا اور دوسرا وزیر ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکا جو ان کے ساتھ ہے کون ہے؟ شاطر بولا، نہیں۔ ملازم نے جواب دیا، یہ راجا کا بیٹا ہے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے نام سے شہر میں الگ الگ تجارتی منڈیاں کھول رکھی ہیں اور بیوپار کرتے ہیں، اور یہ راجا کا بیٹا ایک نوجوان لڑکی سے محبت کرتا ہے جس کا نام سندر دیوی ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جو اسے دیکھنا چاہے 100 اشرفیاں پیش کرے۔ 100 گنیاں لے کر وہ جھروکے میں آتی ہے، جھانک کر اپنی صورت دکھا جاتی ہے۔ ہر روز راجکمار وہاں جاتا ہے اور 100 گنیاں دے کر اسے ایک بار دیکھ آتا ہے۔ شاطر بولا، اٹھو چلو، ہم بھی سندر دیوی کے گھر چلیں اور اسے دیکھ آئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، بہت اچھا۔ کچھ روپیہ اسی تھیلی میں جو اس کی ماں نے دی تھی اور چند خادموں کو ساتھ لے کر یہ دونوں سندر دیوی کے گھر پہنچے۔ شاطر نے اس کے دربان سے بات چیت کی اور اسے کہا، میں سندر دیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دربان بولا، 100 گنیاں پیش کرو۔ شاطر نے 100 گنیاں اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ دربان روپیہ لے کر اوپر گیا۔
सुंदर देवी को खबर दी। उसके सामने सुंदर देवी ने अपनी खिड़की खोल दी और अपना जलवा दिखाकर हट गई। शातिर ने नीचे से उसे देखा और देखते ही उस पर लट्टू हो गया और दरबान से बोला, अगर कोई शख्स महल के अंदर जाना चाहे तो क्या दे? दरबान बोला, 100 रुपया। शातिर 100 रुपया देकर दरबान के साथ सुंदर देवी के महल में घुस गया। फिर उसने दरबान से पूछा, जो शख्स इस जीने से चढ़कर ऊपर जाना चाहे उसे क्या देना पड़ेगा? दरबान बोला, 100 गुनिया। शातिर 100 गुनिया देकर ऊपर चढ़ गया। फिर शातिर ने दरबान से कहा, जो शख्स सुंदर देवी के पास पहुंचना चाहे वो क्या दे? दरबान बोला, 100 अशरफियां। शातिर 100 अशरफियां देकर सुंदर देवी के पास पहुंच गया और उसको सर से पांव तक देखकर बोला, जो शख्स तुम्हारे पास बैठना चाहे वो क्या दे? सुंदर देवी बोली, 100 गुनिया। बैठते ही इसने फिर से सुंदर देवी से पूछा, जो तुम्हें हाथ लगाना चाहे वो क्या दे? वो बोली, 100 अशरफियां। इसी किस्म के कई और सवाल किए और वही जवाब पाता रहा। गर्ज के शातिर रात को वहीं सोया। सुंदर देवी हैरत के साथ ये तमाशा देखती रही कि वो थैली में हाथ डालता है और 100 अशरफियां झट निकाल कर दे देता है। उससे रहा ना गया और वो शातिर से बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम इस थैली में हाथ डालते हो और इसमें से गुनिया निकल आती हैं। शातिर बोला, हाँ, ये एक तिलस्मी थैली है और इसने अपने बाप से विरसे में पाई है, ये कभी खाली नहीं होती। सुंदर देवी उठ खड़ी हुई और बोली, ऐ शातिर, जरा यह थैली मुझे तो दो, मैं भी इसकी सैर करूं। शातिर खड़ा हो गया और अपनी जेब से थैली निकालकर सुंदर देवी के हाथ में दे दी। सुंदर देवी ने वो थैली लेकर अपनी जेब में रख ली और बुलंद आवाज से अपने नौकरों को पुकारा और उनसे कहा, ये नौजवान लोंडा चोर है, इसको पकड़ कर ले जाओ। सुंदर देवी ने कुछ अपना जेवर निकालकर झट शातिर की जेब में रख दिया। ये लोग शातिर को पकड़कर ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस शातिर को पकड़कर राजा के पास ले गई। राजा ने शातिर को देखकर पहचान लिया और अपने वजीर से बोला, इस नौजवान को मुनासिब सजा दी जाए। वजीर ने खड़े होकर अर्ज की, हुजूर, बेहतर ये है कि इसका तमाम माल और दौलत छीन कर इसे शहर से निकाल दिया जाए। राजा ने फौरन हुक्म दिया कि इसको शहर बदर कर दिया जाए और इसका तमाम माल ले लिया जाए। गर्ज के शातिर को निकाल दिया गया। शातिर ने जब ये हाल देखा तो इसने कुछ अशरफियां छुपाकर अपनी कमर में रख ली और वहां से चल दिया। शहरों शहरों मारा फिरा, बड़ी मुश्किल के बाद अपने वतन वापस पहुंचा और अपनी माँ से मिला। उसकी माँ ने अपने रहने के लिए शानदार महल बेच दिया था और वो एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। वो हमेशा अपने बेटे की जुदाई में रोती थी। ना रात को आंसू बंद होते थे ना दिन को, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी आंखें अंधी हो गईं। उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई और धीरे धीरे इसने अपने घर का तमाम सामान भी बेच डाला। जरूरत की कोई चीज इसके पास ना थी। मोहल्ले के बच्चे हर रोज आते, उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाते और शोरगुल मचाते थे। शातिर की माँ उठकर आती और पूछती कि कुंडी क्यों खटखटाते हो और मुझे क्यों सताते हो? लड़के उससे कहते, दरवाजा खोलो, तुम्हारा बेटा शातिर आया है। वो खुश हो जाती और दौड़कर दरवाजा खोल देती, मगर शातिर को ना पाती। बच्चे भाग जाते, ये लपकती, बुड़बुड़ाती, गालियां देती और फिर दरवाजा बंद कर लेती। बच्चे रोज यही शरारतें करते थे। जब शातिर दरवाजे पर पहुंचा तो इसने कुंडी खटखटाई। उसकी माँ ने पूछा, कौन है? शातिर बोला, मैं हूं माँ। उसकी माँ बोली, यहाँ से चले जाओ। शातिर वातिर कहाँ? वो तो चला गया। वो गया, उसके दिन भी गए। फिर शातिर ने आवाज दी, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, मैं आपका बेटा शातिर हूँ। इस दफा उसकी माँ ने उसकी आवाज पहचानी और अंदाजा लगाया कि ये शातिर ही है, तो वो झट उठी, दीवार पकड़ती हुई दरवाजे तक आई, क्योंकि उसकी आंखों की बिनाई खराब हो गई थी। इसने दरवाजा खोला और शातिर से लिपट गई, उसे अपनी आगोश में ले लिया और बोली, बेटे, तुमने क्या व्यापार किया और क्या कमा कर लाए? शातिर बोला, व्यापार वगैरह कुछ नहीं किया। फिर जो कुछ हालात उस पर गुजरे थे वो उसने माँ के सामने बयान किए और बोला, अम्मी जान, क्या मेरा बाप इस थैली के सिवा कोई और चीज मेरे लिए छोड़ गए थे? माँ बोली, हाँ, एक टोपी और छोड़ गए हैं। वो उठी और टोपी लाकर उसको दे दी।
शातिर ने टोपी ले ली, उलट पुलट कर देखी और इसमें 2 अकन्नियां डाली और फिर हाथ डालकर निकाली तो वही 2 अकन्नियां निकली जो इसने डाली थी। इसने टोपी को हर तरफ से गौर से देखा मगर उसके काम का और मतलब की कोई बात जाहिर ना हुई। फिर अपने जी में सोचा कि इसको पहनकर तो देखूं। इसने एक तरफ जाकर टोपी पहन ली, फिर माँ के सामने आया लेकिन उसकी माँ को दिखाई ना दिया। उसकी माँ ने पुकारा, अरे शातिर, क्या तू अभी भी चला गया? शातिर ने अपने सर से टोपी उतार दी तो वो नजर के सामने ही खड़ा नजर आया। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ? वो बोली, बेटे जब तुमने टोपी पहनी तो तुम मुझे दिखाई ना दिया, मैं समझी तू कहीं चला गया। शातिर ने वो टोपी अपनी माँ को दी और बोला, अम्मी जरा तुम तो पहनो, मैं भी तजर्बा करूं। उसकी माँ ने टोपी पहन ली और वो शातिर की नजरों से गायब हो गई। शातिर पुकार कर बोला, अम्मा जान तुम कहाँ हो? तो उसने टोपी उतार दी और वो नजर आने लगी। अब शातिर समझ गया कि ये तिलस्मी टोपी है और इसमें ये खूबी है जो इसको पहन ले वो देखने वालों की नजर से छुप जाता है। अब शातिर को इत्मीनान हो गया, ये टोपी बड़े काम की है। इसने माँ से टोपी ले ली और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से चल दिया। अब वो टोपी पहने हुए सराफा बाजार में पहुंचा, उनके पास से बहुत सारा रुपया उड़ाया और वहां से आकर अपनी माँ को दिया। फिर उससे बोला, अम्मा ये रुपया लो और आराम से रहो, मेरी कोई फिक्र और गम ना करना। अब ये अजीब चीज मुझे मिल गई है। सुंदर देवी से अपनी थैली हासिल करने के लिए फिर हिंदुस्तान का सफर करना पड़ेगा। उसकी माँ ने बहुत रोका, बहुत समझाया बुझाया और कहा, बेटा सफर करना बेकार है, ये टोपी हमको बड़ा फायदा देगी। शातिर बोला, नहीं बल्कि ये सफर बहुत जरूरी है, मैं जरूर जाऊंगा। ये कहकर इसने टोपी पहन ली और घर से निकला। वो टोपी पहने हुए समंदर के किनारे तक पहुंच गया और उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ पहुंचकर पता चला एक जहाज हिंदुस्तान के उसी शहर सूरत को जाने वाला है जिसमें सुंदर देवी रहती थी। शातिर उसमें सवार हो गया और किसी को नजर न आया। जहाज रवाना हुआ। उसको जब भूख लगी वो जहाज वालों का खाना चट कर जाता और किसी को खबर ना होती। अब वो उसी शहर सूरत के साहिल पर पहुंच गया जहां सुंदर देवी रहती थी। शातिर जहाज से निकलकर सीधा सुंदर देवी के महल पर पहुंचा और बेखट के अंदर दाखिल हो गया, मगर वो किसी को नजर ना आया और सुंदर देवी के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने सर से वो तिलस्मी टोपी उतार दी। सुंदर देवी उसको देखकर हैरान रह गई। शातिर बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूँ और तुम्हारी आंखें देख रही हैं कि मैं आ गया हूँ। लाओ जल्दी मेरी थैली मुझे फौरन वापस दे दो, वरना इसी वक्त मार डालूंगा। सुंदर देवी बड़ी मकार औरत थी। उसने फिर एक नई चाल चली और शातिर आसानी से उसके धोखे में फिर आ गया। ऐ शातिर, अब तक तुम कहाँ थे? खुदा की कसम, अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। उस दिन से आज तक तुम मेरी आंखों में फिर रहे हो। जिस वक्त से गए हो ना मुझे खाना अच्छा लगता है ना पीना, और ना मुझे नींद आती है, ना मुझे चैन नसीब है। कभी तुम मेरी निगाह से उछल नहीं हुए। शातिर बोला, देखो ये मेरी तिलस्मी टोपी जिसने मुझे तुम तक अपनी थैली लेने के लिए पहुंचा दिया है। सुंदर देवी ने उससे कहा, जरा मुझे भी तो दिखाओ ये अजीब चीज। ये कहकर इसने शातिर से टोपी ले ली और उसको पहनकर शातिर की निगाह से गायब हो गई। शातिर बोला, देखो सुंदर देवी, मेरी टोपी फौरन दे दो। मगर इसने अपने खादमों को पुकारा और उनसे बोला, पकड़कर ले जाओ और यहाँ से निकाल दो। खादम फौरन दाखिल हुए और शातिर को घसीटते हुए ले गए और महल से बाहर निकाल दिया। अब शातिर को अपनी टोपी से भी हाथ धोना पड़ा। इस वक्त उसको अपनी टोपी हाथ से जाने पर किस कदर शर्मिंदगी और सदमा हुआ होगा। वो अपनी बेवकूफ़ी और नादानी पर बहुत पछताया और पैदल चल दिया। वो आफतें और मुसीबतें झेलता और शहरों की खाक छानता कई अरसे के बाद किसी न किसी तरह अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसकी माँ ने उसको देखा तो पूछा, बेटे इतने अरसे तुमने क्या किया? जो कुछ हालात पेश आए थे शातिर ने अपनी माँ को शुरू से आखिर तक कह सुनाए। बेचारी गमज़दा माँ रंजो गम के सिवा क्या करती, रोती रही। मगर शातिर के सर से सुंदर देवी को अपने काबू में लाने का भूत अभी तक नहीं उतरा था और इतने दुख झेलने पर भी वो हिम्मत न हारा। उसने पूछा,
मरहूम अब्बा जान ने कोई और चीज़ भी मेरे लिए छोड़ी है। उसकी माँ बोली, अब मेरे पास एक सिर्फ डंडा रह गया है, इसके सिवा और कोई चीज़ बाकी नहीं। तुम्हारे मरहूम बाप ने अपनी वफात से पहले ये कहा था, अगर शातिर इसकी हिफाजत करेगा तो ये भी उसकी हिफाजत करेगा, अगर वो इसकी हिफाजत ना कर सका तो अल्लाह भी इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा और वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। शातिर बोला, लाओ अम्मा जान, वो डंडा मुझे दे दो, मैं उसकी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा। उसकी माँ उठी, वो डंडा निकाल कर लाई और शातिर को दे दिया। शातिर ने उसको दबाया, उलट पुलट कर देखा, मगर उसे अपने मतलब की कोई बात नजर न आई और वो गुस्से में आकर आगे बढ़ा और डंडे को जमीन पर फेंक दिया। डंडा जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, शातिर साहब मैं हाजिर हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं। शातिर बोला, तुम कौन हो। डंडा बोला, मैं डंडा हूँ, जो शख्स मुझसे कोई चीज मांगेगा या जो हाजत चाहेगा मैं उसको फौरन पूरी कर दूंगा। शातिर बोला, अच्छा तो मैं इस वक्त भूखा हूँ, मेरे लिए शायद घी और रोटी लाओ। ये कहते ही शातिर ने अपने सामने मांगी मुराद पाई। वो और उसकी माँ बहुत खुश हुए और खूब पेट भर कर खाया। अब वो डंडे को आजमा चुका था, अब इसने माल और दौलत का खजाना डंडे से तलब किया। उसी वक्त उसको खजाना मिल गया, सोने चांदी के सामने ढेर लग गया। वो सारा खजाना इसने अपनी माँ को दिया और बोला, अम्मी जान लो ये खजाना, तुम आराम से रहना, मेरी फिक्र न करना, अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द आकर तुम्हें वापस मिलूंगा, मुझे फिर सफर करना जरूरी है। वो टोपी और थैली सुंदर देवी के पास से लाना है, वो मेरा माल है और जब तक मैं उसे वापस ना ले लूं मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे दुआएं देकर रुखसत करो, तुम्हारी दुआएं साथ रहीं तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। माँ ने उसको बहुत मना किया मगर शातिर ना माना और ये कहता रहा कि सफर जरूरी है। माँ गरीब सब्र करके और कलेजा थाम कर खामोश रह गई। फिर शातिर ने अपना डंडा जमीन पर डाला और उससे बोला, मुझे सुंदर देवी के पास जल्दी पहुंचा दो। बस ये कहना था कि इसने अपने आप को सुंदर देवी के सामने पाया। सुंदर देवी उसे देखते ही खड़ी हो गई, बज़ाहिर बहुत आओ भगत की, और कहा, आइए आपकी आमद मुबारक हो। शातिर ने उससे कहा, बस बस अपनी ये आओ भगत और मुबारकबाद रहने दो, इसी में अच्छा है कि मेरी टोपी और थैली फौरन मुझे दे दो, वरना मैं तुमको बहुत दूर ले जाकर मार डालूंगा। अब इसने ये कहकर फिर अपना डंडा जमीन पर मारा और उससे कहा, इस मकार औरत को आसमान पर ले उड़ो। ये कहना था, सुंदर देवी एकदम हवा में उड़ गई। सुंदर देवी ने देखा कि वो जमीन से बहुत बुलंदी पर हवा में लटक रही है। फिर शातिर ने डंडे से कहा, इसको उतार लाओ। वो डंडा सुंदर देवी को नीचे ले आया और इसको शातिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुंदर देवी बड़ी आजी और खुशामदी के साथ शातिर से कहने लगी, बेशक तुम जीते और मैं हारी, तुम हक पर हो और मैं कसूरवार, लो ये अपनी थैली और ये टोपी। ये कहकर इसने अपनी जेब से दोनों चीजें निकाली। बज़ाहिर तो ये दिखाया कि वो थैली और टोपी देने वाली है, मगर शातिर को झांसा देना चाहती थी। धोखा देकर इसका डंडा भी उड़ा लिया और डंडे से कहा, इसको कोकाफ पर डाल आओ। थोड़ी ही देर में शातिर ने अपने आप को कोकाफ पहाड़ पर पाया। अब वो परेशान था मगर था बड़ी हिम्मत वाला। वो मायूस न हुआ और एक तरफ को पैदल चल दिया। एक पहाड़ी को तय करता तो दूसरा पहाड़ आ जाता। आखिर चलते चलते वो पानी के एक चश्मे पर पहुंचा जो इस पहाड़ पर बह रहा था। वो खड़ा हो गया और सोचने लगा, या अल्लाह अब किधर जाऊं। आखिर एक तरफ चल दिया कि कहीं कोई रास्ता मिलेगा। चलते चलते उसने चश्मे के किनारे दो खजूर के दरख्त देखे। एक दरख्त में सुर्ख और दूसरे में जर्द फल लगे हुए थे। इसने थोड़े से सुर्ख फल तोड़े और दरख्त से उतरकर एक फल खाया। फल खाते ही ये हुआ कि जैसे जमीन ने पकड़ लिया। ये हालत थी कि वो ना बोल सकता था, ना अपने पांव हिला सकता था, ना फैला सकता था। इतने में क्या देखता है, एक कौवा जर्द फल वाले दरख्त पर आया। इसने एक फल जो नीचे से तोड़कर गिराया। ये फल सीधा शातिर की ठोड़ी के पास गिरा। शातिर ने इसको जिस तरह बंद पड़ा मुंह बढ़ाकर खा लिया और खाते ही अपने आप को तंदुरुस्त पाया। अब इसने अपने दिल में कहा, यह तो बड़े काम की चीज है, थोड़े थोड़े दोनों दरख्तों के फल तोड़कर रख लेने चाहिए।
इसने दोनों दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़े और वहां से चल दिया। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि एक गरीब दिखाई दिया। वो शातिर को देखकर ठहर गया। शातिर उसे देखकर आगे बढ़ा, सामने आकर उसे सलाम किया और पूछा, आप कहाँ रहते हो? अरब ने कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ, मगर तुम कहाँ? खबर भी है कि तुम अपने वतन से कितनी दूर हो? यहाँ से 500 बरस की राह का फासला है। शातिर बोला, ऐ सरदार, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, या तो मुझे मेरे वतन तक पहुँचा दीजिए या ऐसा रास्ता बताइए कि मैं चलकर अपने वतन पहुँच जाऊँ। मैं परदेसी मुसाफिर हूँ। अरब ने उससे कहा, मैं तुम्हें उसी महल तक क्यों ना पहुँचा दूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। ये फल सुंदर देवी के हाथ बेच डालना। शातिर बोला, ये तो बहुत अच्छा है। अब उस आदमी ने कहा, अच्छा तो मैं झुकता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। शातिर बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अरब की पीठ पर सवार हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आवाज सुनी, आंखें खोलो। शातिर ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि ना अरब है ना और कोई। ये तन्हा सुंदर देवी के महल के सामने खड़ा था। इसने आवाज लगाई, लो ताजा खजूरें। सुंदर देवी ये आवाज सुनकर अपने दिल में बोली, हैं ये आजकल ताजा खजूरें कहाँ? इसने अपने दरबान को पुकारा और बोला, देखो खजूरें बेचने वाला जा रहा है, हमारे लिए खजूरें तो ले आओ। दरबान निकला और जाकर उससे पूछा, खजूरें कैसे देते हो? शातिर बोला, 5 रुपया रत्तल। दरबान बोला, 2 रत्तल तोल दो। शातिर ने 2 रत्तल खजूरें तोलकर उसको दे दी और उसे 10 रुपये लेकर चल दिया। सुंदर देवी ने खजूरें रखवा दी और ये सोचा कि रात को खाने के बाद खुद खाएगी और सबको खिलाएगी। रात को खाने के बाद सुंदर देवी ने खजूरें बांटी। सबने शौक से मजे ले लेकर खाई। खाते ही सब सुन होकर रह गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। कोई उनमें ऐसा बाकी ना था जो अपने हाथ पांव हिला सकता और मुंह से बोल सकता। रात को सुंदर देवी के महल का गश्त लगाने और दरवाजे पर पहरा देने और हिलने की सक्कत ना रही। दरवाजा रात भर खुला पड़ा रहा। जिन लोगों ने खजूरें नहीं खाई थी वो ये हाल देखकर परेशान हो गए। उन्होंने जाकर राजा को खबर दी। उसी वक्त राजा और वजीर सुंदर देवी के महल पहुंचे। अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा सुंदर देवी और जितने लोग उसके आसपास थे वो सब के सब बेहरकत पड़े थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। राजा ने फौरन हकीमों को बुलाने का हुक्म दिया। हकीमों ने आकर उन्हें देखा, सबको दवा दी, इलाज किया, मगर कोई फायदा नजर न आया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शातिर ने अपना काम जारी रखा। वो एक मगरबी डॉक्टर के भेष में सुंदर देवी के महल के नीचे आया और लोगों से बोला, मैं हकीम हूँ, हर बीमारी का इलाज और दवा देता हूँ। राजा जो उस वक्त महल में मौजूद था उसको खबर दी। इसने हुक्म दिया कि हकीम को हाजिर करो। शातिर हाजिर हो गया। राजा ने इससे कहा, क्या तुम अपाहजों का इलाज कर सकते हो? शातिर बोला, हाँ कर सकता हूँ, मगर एक शर्त है कि आप और आपके साथ जितने लोग हैं सब यहाँ से चले जाएं। मेरे सिवा कोई और महल में बाकी ना रहे। महल के दरवाजे में ताला डाल दिया जाए। राजा बोला, अच्छी बात है। ये सब लोग शातिर को महल में छोड़कर चले गए। दरवाजे में ताला डाल दिया गया। शातिर को जब पूरा इत्मीनान हो गया तो महल के कोठे पर पहुंचा। सुंदर देवी के सामने खड़ा हो गया और उससे बोला, बताओ मेरी थैली, टोपी और डंडा कहाँ है? अगर अब भी तुमने मेरी चीजें ना दी तो तुम लोगों को इसी हालत में छोड़ दूंगा और तुम सब के सब यूं ही मर जाओगे। ये कहकर उठा और इसने सुंदर देवी की तलाशी ली, मगर इसके पास कोई चीज ना मिली। फिर वो महल में घुस गया। हर कमरे, हर कोठरी में ढूंढता चक्कर लगाता रहा। आखिर एक संदूक में ये सब चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई पाई। शातिर ने उनको ले लिया और सुंदर देवी के पास आकर बोला, कहो अब क्या चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से छुड़ाऊं तो जो मैं कहता हूं उसे कबूल करो, मगर अब धोखा ना देना। सुंदर देवी ने आंखों से इशारा किया जिसका मतलब था कि कबूल है। अब शातिर ने अपना डंडा जमीन पर मारा और बोला, काजी को और जो काजी के साथ हो उसको मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर में काजी और उसके साथ 2 आदमी सामने मौजूद थे। शातिर ने काजी से कहा,
जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? काजी बोला, नहीं। शातिर बोला, इसलिए कि सुंदर देवी से मेरा ब्याह कर दो और निकाहनामा लिख दो। शातिर ने काजी को 10 अशरफियां और उसके साथियों को 5-5 अशरफियां दी। फिर अपने डंडे से बोला, इन्हें वहीं पहुंचा दो जहां से लाए थे। जब सुबह हुई, काजी और उसके साथियों की आंखें खुली तो इन लोगों ने अपने आप को कश्मीरी शाल में लिपटा हुआ पाया और अपनी अपनी जेबों में हाथ डाला। काजी को 10 अशरफियां और बाकी लोगों को 5-5 अशरफियां मिली। काजी ने हैरत के साथ अपने साथियों से पूछा, रात को हम कहाँ गए थे और हमने वहां क्या किया? कुछ खबर नहीं। उन्होंने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते। काजी बोला, खुदा की कसम, अच्छा हो कि हर रोज इस काम के लिए हमारे पास कोई आसमान से उतरा करे और हर रात हम यूं ही जाया करें और 10 अशरफियां मिलती रहें। उधर शातिर ने जब निकाहनामा लिखवाया तो अपने डंडे को हुक्म दिया कि इस महल को और जो कुछ इस महल में है सबको हमारे देश में पहुंचा दो। डंडा फौरन हुक्म बजा लाया। अपने वतन पहुंचकर शातिर ने बड़ी खुशियां मनाई, खूब धूमधाम से जश्न किए, खूब दिन रात दावतें होती रहीं। कई दिन तक शादी का जश्न रहा। तमाम शहर में धूम मच गई और ये सब ऐशो आराम से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।